Hello students, today we are here with a detailed summary of lesson number 5, Mother's Day. Actually, it is a play. In this play, you will find the deplorable condition of the women in the society and especially in family has been depicted by the writer. In the man-dominated society, women are taken just like a dirt and they are exploited even by the family members. Their desires and ambitions have no value for the family members. First of all, let's talk about the characters mentioned in the lesson. Basically, there are 5 main characters in the play. Number 1, Mrs. Pearson, who is very amiable, soft spoken, and who is mother of the family, and she is just treated like dirt and dust. Second is Mr. George Pearson, who is husband of Annie Pearson, or you can say Mrs. Pearson, and he is sinister and he dominates her wife. Third is Doris Pearson, who is daughter of the family, who is fashionable, very spoiled, and she has a boyfriend named Charlie Spence. Then Cyril Pearson, who is the son of the family, he is also spoiled. He has no feeling even towards her mother, and he used to play gamble. He used to make money by horse races. And then the other important character is Mrs. Fitzgerald, who is the neighbor of the family, Mrs. Pearson's family. She is sinister, strong lady. She knows about the magic. She even changed the personality, means soul may move from one body to another body. The play starts when Mrs. Pearson is there and Mrs. Fitzgerald is there with conversation on the stage. Mrs. Pearson, as I tell you, is a housewife and mother. She is fond of her family and tolerates them. She always moves around the family members. Children and husband of the family is not giving proper attention to her. And Mrs. Fitzgerald, who is the neighbor, she knows everything. One day she comes and tries to make firm to Mrs. Pearson. She tells her that you should treat your family with a dominated nature, only then she can handle them. Otherwise, they will be spoiled. In between, she changes the personality. Means now Mrs. Pearson looks Mrs. Pearson, but inwardly she is Mrs. Fitzgerald, and vice versa. Means Mrs. Fitzgerald looks like Mrs. Fitzgerald, but inwardly she is Mrs. Pearson. It is decided that now she will, mean Mrs. Fitzgerald will treat the family in the look of Mrs. Pearson. The drama begins now when Mrs. Pearson, who is actually Mrs. Fitzgerald, first of all, first member of the family, means Doris comes on the stage. She is daughter, very spoiled, and she even orders her mother for the tea and also ordered to iron the yellow silk dress because she is going to meet her boyfriend Charlie Spence. But today Mrs. Pearson is not actually Mrs. Pearson. She is Fitzgerald. But Doris does not know about it, and Mrs. Pearson today rebuked her. She said even that her boyfriend Charlie Spence was half wit and half mind. And at this, Doris starts to weep, and she went away. Then comes Cyril Pearson, who is the son of the family. He also orders her mother even from the outside. She asks for the tea, but at this Mrs. Pearson said, "Today tea is not ready. If you want, you may
take it yourself. Now everybody was surprised. Doris was surprised and Cyril was also surprised. Then comes the husband, means George Pearson. She also asked tea and said, please give me tea, and after that I will go to club. At this, Mrs. Pearson was very angry. She called her Pompey Ompy Pearson, and she also tells that people at club calls you Pompey Ompy Pearson. At this, George was very angry, and he tries to dominate his wife as usual. But today his wife was very dominating in nature. She even scolds and rebukes her husband. And her husband, means George Pearson, was somehow very surprised. In between, Mrs. Fitzgerald. In outer look, she was Mrs. Fitzgerald, but inwardly she was Mrs. Pearson. She comes on the stage and she requests all the family members to talk a private conversation with Mrs. Pearson. And now Mrs. Fitzgerald, who is actually Mrs. Pearson, she was very unhappy too, and she says, please change my body once again. But Mrs. Fitzgerald takes a firm decision and determination that she will treat the family in the manner she herself is going on. And anyhow, now family was changed when real Mrs. Pearson, who is outward and inward Mrs. Pearson, she was on the stage, and everybody was at the back end call of Mrs. Pearson. Now they want to live in the house. Now they want to make everything that is agreeable for Mrs. Pearson. And Mrs. Pearson also take this as enjoy. She play card, etc. Means sometimes it takes you a firm foot on the earth if you want to take your rights, etc. बच्चों, ये एक प्ले है. इस प्ले में यह बताया गया है कि जो आज के समाज में जो पुरुष है, पुरुष प्रधान समाज ये है, और यहाँ पर क्या है, औरतों को घर में ही कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उनकी इच्छाओं का कोई ख्याल नहीं रखता. सब अपनी अपनी इच्छाओं, चाहे बेटा, चाहे बेटी, चाहे पति, कोई भी है, सबको अपनी इच्छाएं पूरी करवानी है. इस बात का कोई भी ख्याल नहीं रखता कि घर में जो माँ है, वो यानी कि जो औरत है, उसकी अपनी क्या इच्छा है. ये एक नाटक है. इस नाटक में बेसिकली 5 मुख्य पात्र हैं. सबसे पहले जॉर्ज पियर्सन, जो कि परिवार का हेड है, मीन्स जो पियर्सन है, एनी पियर्सन उसका पति है. एनी पियर्सन एक हाउसवाइफ है, बड़ी ही सॉफ्ट है और कह लीजिए विनम्र है, और अपने परिवार के सदस्यों का खूब ख्याल रखती है, लेकिन परिवार के सदस्य उसका कोई ख्याल नहीं रखते. फिर आपको डोरिस मिलेगी. डोरिस पियर्सन जो बेटी है और जो बिगड़ैल है, जो अपनी माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, सर्विस करती है और घर आते ही केवल आदेश देती है. फिर आपको मिलेगा इसके अंदर सिरिल पियर्सन. सिरिल पियर्सन जो कि बेटा है परिवार का, और वो भी कोई ख्याल नहीं रखता अपनी माँ का. वो भी बाहर से आते ही आदेश देता है और यूँ कह लीजिए अपने ये भी धौंस दिखाता है कि वो 8 घंटे ऑफिस में काम करके आया है. और वो जो घोड़े हैं, घोड़ों की रेस पर पैसे खर्च करता है, जुआ खेलता है, और कोई ज़्यादा जीता नहीं है, मीनिंग विन नहीं होता है. इस पर जो है आज मिसिस फिट्जगेराल्ड, जो पड़ोसन है मिसिस पियर्सन की, वो आज घर में आई हुई है. अभी परिवार का कोई सदस्य नहीं आया, और उसने आज मिसिस पियर्सन को कहा कि तुम्हें अपने परिवार को सुधारना चाहिए. मिसिस पियर्सन ने घबरा करके कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती. इस पर मिसिस फिट्जगेराल्ड ने कहा कि आज मैं जादू, क्योंकि मैंने जादू सीखा है ईस्ट से, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं
तेरे अंदर समा जाती हूँ, तू मेरे अंदर समा जा। मीन्स मैं दिखूंगी तो मिसिज पियर्सन, वास्तव में होंगी मैं मिसिज फिtzgerald। तू दिखेगी मिसिज फिtzgerald लेकिन वास्तव में होगी पियर्सन। तू मेरे घर चले जाना और मैं यहाँ पर तेरी जगह तेरा चेहरा ले करके इन सबको ठीक कर देती हूँ। इस तरीके से जबरदस्ती वो आत्माओं का मिसिज फिtzgerald, क्योंकि वो एक बहादुर एक दबंग लेडी है, उसने जबरदस्ती मिसिज पियर्सन की आत्मा चेंज करके वहाँ बैठ गई। सबसे पहले आती है डोरिस। डोरिस आते ही, माँ मेरी चाय दे दो, माँ आज तुमने जो पीली सिल्क की ड्रेस है वो तो इस्त्री कर दी होगी, प्रेस कर दी होगी, मैं कह के गई थी है ना, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस से मिलने जाना है। इस पर मिसिज पियर्सन, जो कि वास्तव में मिसिज फिtzgerald है, वो चिल्ला करके कहती है, यू आर नॉट देयर टू गो। मीन्स आज तुझे कहीं नहीं जाना और ये चाय कोई तैयार नहीं है। और उसने ये भी कहा कि जो तेरा पति है वो क्या है, वो एक बदबूदार दांतों वाला और आदि बुद्धि वाला व्यक्ति है। और इस पर डोरिस रोने लग जाती है। तभी सिरिल वहाँ पर आता है। सिरिल भी वैसे ही आदेश देता है जैसे डोरिस कि माँ चाय बना दो, ये है वो है। माँ ने कहा कोई चाय तैयार नहीं है, अगर तुमने पीनी है तो तुम पी लो। उन्होंने ये भी देखा कि आज माया सिगरेट भी पी रही है, शराब भी पी रही है। मीन्स क्योंकि वास्तव में वो मिसिज पियर्सन तो थी नहीं, तो इसी बीच वो भी निराश हो जाता है। तभी आता है जॉर्ज पियर्सन, वो भी ऐसे ही आदेश देता है। ये एक उनका दिनचर्या थी, हर रोज का ही काम था। उसने भी जैसे ही आदेश देना शुरू किया तो मिसिज पियर्सन ने उसको भी डांट दिया। इवन कि जो डोरिस है, सिरिल है, वो तो ये भी कहने लगा कि हम 8 घंटे ऑफिस में काम करके आते हैं, हम हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। तो इस पर आज मिसिज पियर्सन ने भी कहा कि आगे से मैं भी 8 घंटे ही काम किया करूंगी और 40 घंटे एक हफ्ते के काम किया करूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। यह सुनकर के सिरिल का माथा सक पका जाता है। करते करते वो सबको बिल्कुल सबकी बेइज्जती कर देती है। इसी बीच मिसिज फिtzgerald, जो वास्तव में मिसिज पियर्सन है, वो स्टेज पर आती है। और डोरिस और सिरिल तो पहले ही स्टेज से जा चुके थे। अभी यहाँ पर खड़ा था कौन? यहाँ पर खड़ा था जॉर्ज। जॉर्ज से मिसिज फिtzgerald, जो वास्तव में मिसिज पियर्सन है, वो कहती है कि कृपया करके आप 5 मिनट मुझे दे दीजिए। जॉर्ज वहाँ से चला जाता है और फिर मिसिज फिtzgerald, जो वास्तव में मिसिज पियर्सन है, वो प्रार्थना करती है मिसिज पियर्सन से, जो वास्तव में फिtzgerald है, कि आप प्लीज अपनी आत्माओं को दोबारा चेंज कर लो। मिसिज फिtzgerald वायदा लेती है कि तू अब अपने परिवार से जैसे मैं ट्रीट कर रही थी वैसे ही ट्रीट करना। ऐसा कह करके मिसिज फिtzgerald जादू मारती है और एक बार फिर मिसिज पियर्सन दिखने में भी मिसिज पियर्सन है और वैसे भी मिसिज पियर्सन है, और ऐसे मिसिज फिtzgerald दिखने में भी मिसिज फिtzgerald है और वास्तव में भी फिtzgerald है। अब ये कह करके मिसिज फिtzgerald वहाँ से चली जाती है, बाहर खड़ी होकर के देखती है कि कैसा ट्रीटमेंट मिसिज पियर्सन करती है और कैसी रिएक्शन प्रतिक्रिया परिवार की होती है। अब परिवार सुधरा हुआ था। क्यों? क्योंकि कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अब क्योंकि उनके सबके साथ बुरा बर्ताव हुआ था, अब एक एक करके सब ठीक हो गए। अब मिसिज पियर्सन ने जैसा डोरिस से चाहा, जैसा सिरिल से चाहा, जैसा जॉर्ज से चाहा, वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने सबने वायदा किया कि वो यहीं पर रुकेंगे, आज यहाँ पर चाय पी करके बाहर नहीं जाएंगे। आमतौर पर वो क्या करते थे, आते ही ऑफिस वगैरह से आते ही चाय पी और बाहर चले गए, रात को आए और आकर के सो गए। उनका कभी भी इस बारे में कोई ख्याल ही नहीं गया कि इस लेडी मिसिज पियर्सन पर क्या बीतेगी। लेकिन आज वो राजी हो गए हैं उसके साथ समय बिताने के लिए, उसके साथ कार्ड्स खेलने के लिए। इस पर मिसिज पियर्सन ने मिसिज फिtzgerald का मन ही मन धन्यवाद किया और उसको एक बात समझ में आ गई कि कई बार अपने अधिकारों को लेने के लिए कुछ न कुछ कह लीजिए आपको फर्म होना पड़ता है, आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। और ये ही इस नाटक की थीम भी है कि औरतों को बिल्कुल अपने आप को सौंप नहीं देना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज में उनको अपनी इच्छाओं का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और अगर बेटा बेटी इवन की अगर पति उनका ख्याल नहीं रखता तो
सही नहीं, सीधे नहीं तो थोड़े से टेढ़े तरीके से उनको ये बात एहसास करवा देनी चाहिए कि मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी अधिकार है, तभी जाकर के उसको अपना अधिकार मिलेगा। धन्यवाद।